الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ سورہ ذاریات کا ہمارا درس قرآن چل رہا تھا، ہم آیت نمبر 19 کا درس ہو چکا تھا اور 20 سے ہم شروع کریں کہ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں، یہ فی کا مطلب میں، زمین اور زمین میں، ٹھیک ہے، یہ جار اور یہ مجرور، آیات نشانی ہے، یہ نشانی ہے، یہ مبتدا مؤخر اور یہ مرکب جاری قائم مقام خبر مقدم، اور للموقنین یہ جار اور یہ مجرور، یہ آ گیا مرکب جاری اور یہ ہے متعلق خبر، یہ سارا مل کے جملہ اسمیہ۔ دیکھیں پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وفی اموالہم، جو متقیوں کی صفت بیان کی گئی تھی، تو وفی اموالہم ان کے مالوں میں حصہ ہوتا ہے مانگنے والوں کا اور ان کا بھی جو مانگتے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر اگلی آیت میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مضمون چینج ہو رہا ہے، وفی الارض اور زمین میں، پچھلی آیت میں تھا وفی اموالہم ان کے مالوں میں، اچھا اب وفی الارض اس آیت میں ایک نئی بات ہے کہ موقنین کا ورڈ آیا، وفی الارض اور زمین میں آیات نشانیاں ہیں، کس چیز کی نشانیاں؟ للموقنین یقین رکھنے والوں کے لیے، پہلے تھا متقیوں کی صفت بیان ہو رہی تھی اور اب یقین رکھنے والوں کا، یعنی کہ یہ واو عطف کا ہے، یہ واو عطف کا ہے، یعنی کہ متقیوں کی صفت بیان کرنے کے ساتھ، جو متقین ہیں ان کی صفت بیان کرنے کے ساتھ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں، وہ کس پہ یقین رکھتے ہیں اور یہ کون سی آیات ہے؟ جیسے کہ سورہ ذاریات کا جو قسمیں کھائی گئیں، جو سورہ ذاریات کا عمود ہے، جو سورہ ذاریات کا جو بنیادی مضمون ہے وہ کیا ہے؟ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے دوبارہ زندہ ہونے کا، تمہیں جزا اور سزا دینے کا، وہ وعدہ سچا ہے۔ یہ اس آیات کی طرف نشانی ہے کہ وفی الارض زمین میں نشانیاں ہیں، آیات نشانی ہے للموقنین یقین رکھنے والوں کے لیے، یعنی کہ اس آیت میں یہ بھی بتایا چونکہ وہ عطف کا ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں، وہ اللہ سے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں، وہ جی اٹھنے پر بھی یقین رکھتے ہیں، وہ جزا اور سزا کے دن سے جزا اور سزا پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور پھر ان کے لیے کیا ہوتا ہے جب وہ یقین رکھتے ہیں تو زمین میں ان کے لیے نشانی ہوتی ہے، ان کو نشانی ملتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں کیا کیا نشانی ہے۔ دیکھیں زمین میں نشانی، اگر ہم زمین کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے لیے سورہ نبا ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مرسلات میں کہا کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا میں نے زمین کو کافی نہیں بنا دیا کہ وہ کافی کر دیتی ہے، یعنی کفایت کر جاتی ہے، سنبھالتی ہے زنداؤں کو بھی اور مرداؤں کو بھی۔ دیکھیں زمین پہ ہم دیکھتے ہیں، جب ہم سڑک پہ چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں جو درخت ہیں، جو پودے ہیں، جو پھول ہیں، وہ نشانی ہے اس چیز کی کہ جو اللہ تعالیٰ مردہ گٹھلی کو زندہ کر کے، اس مردہ گٹھلی کو زندہ کر کے درخت کی شکل دے دیتا ہے، اس کو پودے کی شکل دے دیتا ہے، اس کو پھول کی شکل دے دیتا ہے،
वो अल्लाह ताला मुझे मुझे क्यों ज़िंदा नहीं करेगा? वो मुझे अल्लाह ताला ज़िंदा कैसे नहीं ज़िंदा करेगा? तो एक निशानी तो ये है कि जैसे जब दरख़्त होते हैं, जब हम दरख़्तों को देखते हैं, तो ये हमें निशानी देती हैं, ये हमें सिग्नल देती है कि दोबारा जी उठने का। फिर इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि बेसिकली चूँकि कुरैश मक्का, ये मक्की सूरत है, तो कुरैश मक्का जो है, उनकी तरफ इशारा है कि ज़मीन में जो है, यानी कि फिल अर्दि आयातुल लिलमूक़िनून, कि ज़मीन में जो है वो कौम आद के साथ क्या किया हमने, कौम समूद के साथ क्या किया, कौम लूत के साथ क्या किया, उनकी बस्तियों के साथ क्या सलूक हुआ, उन पर जो अज़ाब नाज़िल हुआ, यानी ये भी उनमें निशानी है। यानी यकीन रखने वालों के लिए ज़मीन में निशानियाँ हैं, यानी कि जो यकीन रखना चाहते हैं, तो उनके लिए इसमें बड़ी निशानी है। अच्छा, अब उसके बाद वफ़िल अर्दि आयातुल लिलमूक़िनीन, यानी कि ज़मीन जो है, जब हम ज़मीन में नबातात को देखते हैं, दरख्तों को देखते हैं, तो ये हमें दोबारा जी उठने की याद दिलाती है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मुर्दा गुठली को ज़िंदा किया, उसी तरह अल्लाह ताला एक दिन हमें भी ज़िंदा करेगा। अब देखिए अल्लाह ताला ने कहा वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारी जानों में निशानी है, और तुम्हारी जानों में निशानी है, अफ़ला तुबसिरून, कि क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? अच्छा, जानों में कैसे निशानी है? देखें, इंसान है, ठीक है? आसमान को जब हम देखते हैं, सूरज को जब हम देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि आसमान अपना काम कर रहा है, सूरज जो है वो वक़्त पे निकल रहा है, वक़्त पे अपना काम करके चला जाता है, ग़ुरूब हो जाता है। हमारे मौसम अगर हम देखें, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, हमारे जो सूरज की हरकत है, इससे जो है वो हमारे मौसम जो है वो डिपेंड करते हैं, और इन मौसमों की जो मौसमों के तग़य्युरात होते हैं, मौसमों की जो तब्दीली होती है, इससे हमारी ज़राअत पर इसका ज़राअत का असर-अंदाज़ होता है। ये हमारी ज़राअत पर असर-अंदाज़ होती हैं, और हमारी जो फसलें हैं, हमारा जो रिस्क है, हमारी जो बक़ा है, हमारी जो सर्वाइवल है, वो इस पे डिपेंड करती है। अच्छा, वफ़ी अनफुसिकुम, हम अपने आप में देखें कैसे निशानी देखते हैं। हम ये देखें कि जब एक सूरज को अल्लाह ताला ने एक काम दिया है, यानी काम पे लगाया हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं कि जिस तरह देखें, हम एक स्कूल जाते हैं, या हम एक कॉर्पोरेशन में जाते हैं, या हम किसी जगह जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हर हर चीज़ एक काम में लगी होती है, ठीक है? वहाँ पे कोई चीज़ फ़ुज़ूल नहीं होती। आप अगर स्कूल जाते हैं, या कॉलेज जाते हैं, या किसी फ़र्म जाते हैं, कॉर्पोरेशन जाते हैं, तो फैक्ट्री जाते हैं, तो आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो यानी कि बग़ैर किसी मकसद के नहीं होती। अच्छा, अब जो चीज़ जितनी काबिल होती है, यानी कि अगर आप स्कूल में देखें, जो स्टूडेंट जितना काबिल होता है, जो टीचर जितना काबिल होता है, फ़र्म में, कॉर्पोरेशन में, फैक्ट्री में, जो शख़्स अपनी कैपेसिटी के लिहाज से देखा जाए, अपनी एबिलिटी के लिहाज से देखा जाए, अपनी कॉम्पिटेंसी के लिहाज से देखा जाए, जो जितना कैपेबल होता है, जो जितना काबिल होता है, उसके शोल्डर्स पर उतनी ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, ठीक है? अगर आप आसमान को देखते हैं, आप सूरज को देखते हैं, आप हवाओं को देखते हैं, आप बादलों को देखते हैं, अब आप इंसान हैं, ठीक है? अब इसको वफ़ी अनफुसिकुम को देखो, को अपने आप में निशानी देखो। देखो, तुम्हारे अंदर एक रूह है। अच्छा, तुम्हारे अंदर एक रूह है। सबसे पहले तो अपना ज़ाहिर देखो, एक ज़ाहिर है हमारा और एक बातिन है। हमारे सर के बाल हैं, हमारा चेहरा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह कहा कि चेहरों में निशानियाँ हैं। देखो, तुम्हारे चेहरे जो हैं वो जुदा-जुदा हैं। कितने चेहरे हैं, कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। हम लोगों के चेहरे मुख्तलिफ हैं। सुभान अल्लाह! ये अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं कर सकता। देखिए, ये हमारे जो चेहरे हैं, उन हमारे चेहरों में जो हमारी आँखें हैं, हमारे चेहरों की जो बनावट है, अच्छा, आप देखें, अपनी पलकों को देखें जो आँखों के गिर्द होती हैं, वो एक तो ब्यूटी का काम दे रही होती हैं, और एक हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको बचाती हैं आँख में जाने से। इसी तरीके से जो हमारे आँसू हैं, ये हम मदद देते हैं, ये हमारे लिए बनाए गए हैं कि ये हमारी आँखों को तर रखें। अगर आँखें खुश्क हो जाएँ तो हमें तकलीफ़ हो, और जो हमारी आँख का जो झपकना है, अगर ये ना हो, तो हमारी आँखों में पानी जमा हो जाए, या हमारी आँखें खुश्क हो जाएँ। फिर इसी तरीके से नाक है, अल्लाह ताला ने नाक बनाई है जो कि सूंघने का काम भी करती है, और जो कि साँस लेने का काम भी करती है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान दी है, ना सिर्फ़ हम ज़ुबान से अपने जज़्बात का, अपने अल्फ़ाज़ का इज़हार करते हैं, बल्कि ज़ुबान में कितने हमारे टेस्ट बड्स हैं।
हम अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़ उठाते हैं। इसी तरीके से होंठ है, जो कि हमारे चेहरे की बनावट, हमारे चेहरे की खूबसूरती, जो कि मुस्कुराहट का ज़रिया है। इसी तरीके से आप देखें कि हमारी जो हाथ हैं, हाथों में जो थंब है, जो डॉक्टर्स हैं, जो माहिरीन हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो थंब है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। कोई मसल ऐसा नहीं कर सकता जो थंब कर सकता है। अगर आपका थंब ना हो तो आप लिख नहीं सकते, आप कुछ बना नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते इन 4 उँगलियों से अगर ये थंब ना हो। फिर उसी तरीके से आप ये देखें कि जो हमारी जो सुनने की जो रेंज है, आप जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हमारे सुनने की जो रेंज है वो 20 किलोहर्ट्ज़ हमारी रेंज है, ठीक है? और हम 20 से यानी कम की नहीं सुन सकते। अगर हम 20 से कम की रेंज सुनेंगे, अगर हम इस तरफ की रेंज सुनेंगे, तो हमें हमारे जो बॉडी में जो ब्लड की मूवमेंट है, हमें वो भी सुनाई देगी। तो अल्लाह ताला ने हमारे सुकून के लिए जो है, वो हमारी रेंज का भी ये इंतज़ाम किया कि हमें तकलीफ़ ना हो। अगर हमें वो आवाज़ भी आती है हमारे खून के अंदर, हमारी के बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, जो खून की मूवमेंट हो रही है, जो अंदर की जो आवाज़ें हैं, अगर हमें उनकी आवाज़, अगर हमें इस तरह दिल की धड़कन की भी आवाज़ सुनाई देती और अगर हमें आवाज़ सुनाई देती रहती, तो हम कहाँ आराम से सो पाते। अच्छा, अब हम हमारा सोना देखें। आम मैं एक बायो की बुक में पढ़ा था कि आम आदमी जिसकी 75 इयर्स होती है एज, जो 75 साल जिसकी उम्र होती है, वो अपनी ज़िंदगी के 25 साल तो सो के गुज़ारता है। अच्छा, अब जब 25 साल सो के गुज़ारता है, तो अल्लाह ताला तो चूँकि जिसको जिस तरह उसको जिस तरह के वो अ, होश में होता है, ज़िंदा होता है, तो अल्लाह ताला उसको उस तरह निशानियाँ दिखाता है, तो अल्लाह ताला उसको सोते वक़्त भी निशानियाँ दिखाता है। जैसे कि अल्लाह ताला ख्वाब दिखाता है। अब ख्वाब जो हैं, जब आप सूरह यूसुफ पढ़ते हैं, तो उनमें से एक जो निशानी वो आप ये सीखते हैं, अल्लाह ताला आपको बताते हैं सूरह यूसुफ में कि एक पहलू ये है कि तुम तो खलकत तो दूर की बात है, तुम तो अपने ख्वाब के भी जो है वो तख्लीक नहीं कर सकते। तुम्हें तो जो ख्वाब आते हैं, वो भी मैं उनका तख्लीक करता हूँ, मैं उनको तख्लीक करता हूँ। तुम्हें तो अपनी मर्ज़ी से ख्वाब भी नहीं आ सकते। आप देखें ना, सूरह यूसुफ में आप पढ़ते हैं जो अज़ीज़ मिस्र का जो ख्वाब होता है, उसने 7 लाग़र गायें देखीं, 7 ताकतवर गायें देखीं, 7 होशे देखे सब्ज़ रंग के, उसने गिन भी लिए 7। आम तौर पर कहाँ होता है आप ख्वाब देखते हैं। तो देखें ख्वाब का आना किस सूरत-हाल में, आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ़ में देखें। आपको अक्सर आपकी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात होने होते हैं, आपको पहले से जो है वो प्रेडिक्ट आपके ख्वाबों के ज़रिए कर दिया जाता है। और आम तौर पर कहा जाता है कि जो ड्रीम इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। अच्छा, अब इसी तरीके से ख्वाब आते हैं, ख्वाब में ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी निशानी। इसी तरीके से आप देखें कि आपका जो खड़ा होना है, ये आपका जो बैलेंस में खड़ा होना है, ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा मौज़ा है। यानी अल्लाह ताला ने और आपके अंदर जो पसीना आता है, आपकी बॉडी के अंदर जो 37 सेल्सियस आपकी बॉडी सर्दी में, गर्मी में, बहार में, ख़िज़ा में, आपकी बॉडी जो है वो 37 सेल्सियस जो है वो बरकरार रखती है, हर मौसम में। वो अल्लाह ताला का एक मिरेकल है, जो यानी आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक थर्मोस्टेट लगाया हुआ है। इसी तरीके से हमारी बॉडी पे जो कट लग जाता है, उसमें जो व्हाइट प्लेटलेट्स का जो काम है, यानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना बंदोबस्त किया हुआ है हमारी बॉडी में। यानी कि ये आलमी असगर में इंसान जो है, ये ऐसा है, ऐसी तस्वीर है जिसमें तमाम आलम का अक्स मौजूद है, ठीक है? ये अल्लाह ताला का मास्टरपीस है। तो देखें जब हम किसी कॉर्पोरेशन में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, फर्म में जाते हैं और हम वहाँ पर जब हम देखते हैं कि हर हर एंटिटी हायरार्की का हर एलिमेंट जो है वो अपने काम में बिज़ी होता है। वहाँ पे कोई फ़ुज़ूल नहीं होता और जो जिसको जितनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उसके शोल्डर्स पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ही होती उतनी ही बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये है कि इस कारखाने कुदरत में, इस कायनात में जहाँ आसमान है, ज़मीन है, हवाएँ हैं, बादल हैं, पानी जब अपना वो काम कर रहे हैं, तो इंसान जैसा मास्टरपीस अल्लाह ताला ने इंसान को जो खुदादाद
सलाहियतें दी हैं और इंसान ये सब कुछ करने पर कादिर नहीं है। इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला ने उसके अंदर सारे सारे सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो पहले एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या खराबियाँ, फिर वो अगली दफ़ा अपडेट करते हैं, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा, फिर पांचवी दफ़ा। अल्लाह ताला ने इंसान को पहली ही बार में मुकम्मल बनाया। ऐसा थोड़ी किया कि पहले उसको आँखें दे दी, फिर उसको नाक दिया, फिर उसको एक आँख दी पहले, फिर ये किया, फिर वो किया। उसको पहली ही बार में मुकम्मल बनाया। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह अलीम और हकीम है। इसका मतलब है कि जिस तरीके से स्कूल में, कॉलेज में एक टीचर है, एक स्टूडेंट है जो जितना लायक होता है, उसको जितनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उसके शोल्डर्स पर उतनी ही बड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी तरीके से इंसान जो है, उसके ऊपर भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप जब आप किसी कॉर्पोरेशन में जाते हैं और जब आप वहाँ का नज़्म-ओ-नस्क देखते हैं, वहाँ का अ, ज़ाब्ता देखते हैं, वहाँ का जब डिसिप्लिन देखते हैं, वहाँ नज़्म-ओ-ज़ब्त देखते हैं, हर चीज़ अपने टाइम पे अपना काम करती है। हर चीज़ जो है, वो कोई कोई किसी के काम में मुदाखलत नहीं करती। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार। ना तो सूरज की मजाल है कि वो चाँद को जा पकड़े और ना रात जो है वो दिन से पहले आ सकती है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि हमारी जो ये कारखाना है, इसमें कोई काम जो है वो नज़्म-ओ-ज़ब्त के बगैर नहीं है। कोई काम जो है वो ऐसे अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रहा, इस पर कोई हुक्म लगाने वाला है। देखिए हकम यहकुमु हुक्मन, हुक्मन से फिर हकीम निकला, कोई हुक्म लगाने वाला है, कोई सख्त है। अगर किसी कंपनी का अगर किसी कंपनी में हायरार्की में हर एलिमेंट जो है वो अपना काम पाबंदी की से कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको जो चलाने वाला है, उसका जो ओनर है वो सख्त है, वो डिसिप्लिन पसंद है, वो डिसिप्लिन है। और इसका मतलब ये है कि वो जो भी है उसके पीछे एक गायत है, एक मकसद है। देखिए जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो फैक्ट्री में जाते हैं, तो स्कूल बेमकसद नहीं होता। वहाँ 11 महीने दिए जाते हैं, वहाँ पढ़ाई होती है और वहाँ पे एक एक दिन उन्होंने नतीजा बताना होता है कि जो तालिब-इल्म मेहनत कर रहे हैं, जो तालिब-इल्म मेहनत नहीं कर रहे, उनके साथ क्या करना है। इसी तरीके से आप फैक्ट्री में जाते हैं, ऑफिसेज़ में जाते हैं, तो साल के बाद उन्होंने हर एम्प्लॉयी की एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देनी होती है कि किस एम्प्लॉयी ने क्या किया, किस एम्प्लॉयी ने कितनी मेहनत की, किस एम्प्लॉयी ने कितना एंड प्रोडक्ट दिया। उसी हिसाब से उसको सैलरी दी जाती है, उसके हिसाब से उसकी सैलरी कट की जाती है, उसके अलाउंसेस बढ़ाए जाते हैं, उसके साथ मामला किया जाता है। तो जब ये दुनिया का मामला है, तो आप खुद सोचें कि ये जो कायनात है, क्या अल्लाह ताला ने इंसान को, जिसको मास्टरपीस बनाया, जिसको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, जिसको बहुत सारी हिस्सें दी, क्या उसका कोई उसके ज़िम्मे कोई काम नहीं है? ये सूरह ज़ारियात में आप आखिर में पढ़ेंगे, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों और जिन्नों को बनाया ही इसी मकसद के लिए कि वो मेरी इबादत करें। अच्छा, अब इंसान देखता है कि उसके अंदर एक रूह है। अच्छा, इंसान के अंदर कुछ दाइयात हैं, जो खैर की तरफ बुलाते हैं और जो शर की तरफ बुलाते हैं। आप गौर करें, आप जब अच्छा काम करते हैं, तो आपको सुकून मिलता है और जब आप बुरा काम करते हैं, आप चुगली करते हैं, आप किसी की दिल आज़ारी करते हैं, आप किसी की मदद नहीं करते, आप नमाज़ छोड़ देते हैं, आपकी नमाज़ लेट हो जाती है, जब आप कुरान पाक नहीं पढ़ पाते, तो आप बेचैन महसूस करते हैं। जैसे ये हदीस पाक है, एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इज़ा सर्रतका हसनतुक व साअतका सय्यिअतुक फ़अंतल मुमिन। जब व इज़ा सर्रतका हसनतुक, जब तेरा नेक काम तुझे खुशी दे, व साअतका सय्यिअतुक, और जब तेरे बुरे काम तुझे मायूस कर दें, उदास कर दें, तो तू मोमिन है। क्या आप अपने अंदर ये फीलिंग नहीं करते? आप नहीं देखते? ये निशानी है। देखिए, आपके अंदर एक अल्लाह ताला ने अदालत लगाई हुई है, जो कि एक बड़ी क़यामत के दिन से पहले जो छोटी अदालत है। आप कुछ भी गलत कर रहे होते हैं, आपका दिल भारी हो जाता है। वो अल्लाह ताला का इशारा होता है कि ये आप गलत काम कर रहे हैं।
तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अफला तुबसिरून, क्या तुम बसीरत नहीं करते, बसीरत से काम नहीं लेते, क्या तुम समझ बूझ से काम नहीं लेते? अल्लाह ताला ने फरमाया जो कुरान है शिफाउल लिमा फिस सुदूर, ये शिफा है जो तुम्हारे सीनों में है। अल्लाह ताला ने कहा सूरह अनफाल में या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ए ईमान वालो लब्बैक कहो अल्लाह और उसके रसूल की उस पुकार पर जो वो तुम्हें पुकारते हैं उस चीज़ की तरफ जो तुम्हें ज़िंदगी देती है। तुम्हें अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़िंदगी देता है। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही तो तुम्हें सुकून है। ज़िंदगी की किसी चीज़ में वो सुकून नहीं है। अगर इस दुनिया की किसी चीज़ में खुशी है तो उसके साथ गम भी जुड़ा है। लेकिन आखिरत की चीज़ ऐसी है कि आप जब आखिरत को कुरान पाक की तरफ जाते हैं, आप रसूलों की सीरत पढ़ते हैं, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं, जब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अहादीस मुबारका को पढ़ते हैं, तो आपको एक नई ज़िंदगी मिलती है। आप जब उनकी शरीयत पे चलते हैं, तो आपको एक नया नूर मिलता है और वो नूर आपके बातिन में रोशनी पैदा करता है, जिसकी रोशनी में आप चलते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, ज़मीन को देखते हैं, ज़मीन की निशानियाँ देखते हैं और ज़मीन की निशानियाँ देखते हैं, दरख़्त देखते हैं, वो आसमान देखते हैं। अच्छा आगे आ जाएगा, आसमान का ज़िक्र भी आ जाएगा। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और आसमानों में है तुम्हारा रिज़्क, वमा तुअदून, और उसका जिसका तुमसे वादा किया जाता है। ज़मीन को देखते हैं, तो जब वो आसमान को देखते हैं, तो आसमान में जो है वो जब वो देखते हैं कि बारिश बरस रही है, और हम बारिश पे आपको बता चुके हैं कि जिस तरह के दरिया, समुद्रों से, तालाबों से सूरज की शुआएँ पड़ती हैं, पानी बुखारात की शक्ल में उठता है, उसको हवाएँ उठाती हैं, ग्लेशियर से बर्फ़ के पहाड़ों से लेके गुज़रती हैं, वहाँ से ठंडी जगह बुलंदी पर पहुँचती हैं, तो वो बादल बनते हैं और फिर जब अल्लाह का हुक्म होता है तो वो बरसाते हैं। यानी कि ये अल्लाह ताला का वो मैसेज है कि जिस तरह हम पानी को जो है वो एक एक दूसरी हालत में ले जाते हैं और तुम्हारे नज़दीक कि वो ख़त्म हो गया पानी, वो ख़त्म हो गया, वो मर गया, वो डिके हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम उसको दोबारा तुम्हारी आँखों के सामने ज़िंदा करते हैं, तो हम कैसे तुम्हें ज़िंदा नहीं करेंगे? हम तुम्हें ज़िंदा करने पर कैसे कादिर नहीं हैं? और फिर देखो जिस तरह इस कायनात में जो निज़ाम चल रहा है, पाबंदगी के साथ, कभी ऐसा नहीं होता कि सूरज जो है वो एक दिन ना निकला हो, कभी ऐसा नहीं होता कि सूरज जो है वो अपने टाइम टेबल से ज़रा-सा भी हट के पहले या बाद में निकल गया हो। यानी इसका मतलब क्या है? इस कंपनी देखिए एक इवेंट मैनेजर है, एक इवेंट होता है, ठीक है? एक इवेंट मैनेजर को कहा जाता है कि आप इवेंट ऑर्गेनाइज़ करें। अगर वो इवेंट बहुत बाकायदगी से होता है, एक ज़रा से सेकंड की भी गलती नहीं होती, ज़रा से सेकंड का भी डिले नहीं होता, तो आप क्या कहेंगे कि वो जो इवेंट मैनेजर था, वो संजीदा था, वो संजीदा था। और जब संजीदा होता है तो वो मकसद होता है उसका। जब संजीदगी होती है, देखिए नज़्म व ज़ब्त, संजीदगी और मकसदियत, ये लाज़िम व मलज़ूम है। अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा है, तो आप समझते हैं कि ये बुनियादी अनासिर होते हैं। अब मुझे ये बताएँ कि कायनात में जब हर चीज़, आप आसमानों को देखें, आप हवाओं को देखें, आप आसमान को देखें, आप सूरज को देखें, आप चाँद को देखें, आप सितारों को देखें। देखिए दिन के टाइम सूरज होता है तो चाँद सितारों उसके काम में मुदाखलत नहीं करते। रात के टाइम चाँद सितारे होते हैं तो सूरज उसके कामों में मुदाखलत नहीं करता। इसी तरीके से मौसम की तक़सीम है। इसका मतलब है तो कोई जो है वो इस निज़ाम को मॉनिटर कर रहा है। अच्छा, अब देखिए, अब फर्स्ट ईयर में अक्सर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई है। वो ये समझते हैं कि हम स्कूल से आज़ाद हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ाते हैं तो हम खुद ये महसूस करते हैं स्टूडेंट्स में, वो ये समझते हैं कि हमें अब मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ पढ़ आए हैं मैट्रिक में। लेकिन जब 1 महीना रह जाता है या जब इम्तिहान सर पे आते हैं या जब नतीजा निकल जाता है, तो फिर उनके सर से पानी निकल जाता है और उनको फिर होश आता है कि नहीं, जो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई थी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और मैट्रिक की पढ़ाई तो 5% भी नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब इस कायनात का जो निज़ाम है, वो उसका चला रहा है, हर कोई अपने-अपने काम में लगा हुआ है, तो इंसान का कोई काम नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है
کہ इस कायनात का जो निज़ाम चलाने वाला है वो संजीदा है, फिर उसने कोई ना कोई मेन्यू तो दिया होगा। आप देखें, जिसमें एक स्कूल होता है उसका सिलेबस है, मैट्रिक के पढ़ने वालों का सिलेबस है, 8वीं क्लास के पढ़ने वालों स्टूडेंट्स का सिलेबस है। इसी तरीके से कॉर्पोरेशन होती है, तो उस कॉर्पोरेशन का, उस फर्म का एक लॉ बुक होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हर एक को फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर वो फॉलो ना करें तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाता है। तो अल्लाह ताला जो इस कायनात का निज़ाम चला रहा है, अल्लाह ताला जिसने इस कायनात को बनाया है, उसने कानून दिया। उसने कानून दिया। देखिए, घर नहीं चलता कानून के बगैर, चाहे वो वर्बल हो। रूल्स होते हैं ना, हर हर घर के रूल्स होते हैं। एक आम चाट बेचने वाला है, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसका भी कोई हिसाब-किताब होगा, उसका भी कोई चेक एंड बैलेंस होगा कि मैं कितने कितने फ्रूट लाऊँगा, उनको कैसे धोऊँगा, उनको कैसे कट करूँगा, कितने का बेचूँगा, क्या करूँगा, सारे एक्सपेंडिचर, सारा एनालिसिस करता है वो। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जब कायनात बनाई है, तो अल्लाह ताला ने सबके रूल्स, सबके जो रूल्स हैं, सबके जो रूल्स हैं, वो डिफाइन किए हैं कुरान पाक में। ये कुरान पाक जो है वो इंसान के लिए नाज़िल किया गया है और इंसान को रूल्स बताए गए हैं कि देखो, ये मामलात हैं। और अल्लाह ताला ने जिस तरह कंपनीज़ में होता है, स्कूल में होता है, प्रिंसिपल अपने टीचर्स को भेजता है, कंपनीज़ में सेक्रेटरीज़ भेजे जाते हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को भेजा और अपने रसूलों को भेजा। इसी तरह ममालिक में आप देख लें, पैगाम देना होता है तो एम्बेसडर्स को भेजा जाता है। आज जो है वो हम एडवर्टाइज़मेंट से जो है वो अपना पैगाम भेजते हैं। तो अल्लाह ताला ने रसूलों के ज़रिए पैगाम भेजे और अल्लाह ताला ने रसूलों के साथ सहीफ़े भेजे और इसी तरीके से तौरात भेजी, जिसमें कानून था। इसी तरीके से फिर इंजील भेजी, जिसमें हिकमत थी, फिर ज़बूर, अब फिर कुरान पाक जो कि साढ़े 1400 साल गुजरने के बाद भी बिल्कुल वैसे। आप देखें, एक किताब जिसकी जिसकी जो ज़िंदगी होती है वो 50 से 100 साल से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कुरान पाक को आप जितना पढ़ते हैं आपका दिल नहीं भरता, आप मज़ीद पढ़ते हैं। इसी तरीके से कुरान पाक के जो मानी है, कुरान पाक की जो फ़साहत व बलागत है, और देखें ये कुरान पाक, इसकी तो पेशन गोई थी तौरात में। ये कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसको कोई लिख ले। तौरात में पेशन गोई थी, इसमें अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मूसा, मैं बनी इसराइल के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूँगा और उसके मुँह में अपना कलाम डालूँगा और वो वही कहेगा जिसका मैं उसको हुक्म दूँगा, और जो कोई मेरी उन बातों को ना सुनेगा, तो मैं उनसे उसका हिसाब लूँगा। इसी तरीके से आप गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पेशन गोइयाँ मिलती हैं ईसा अलैहिस्सलाम की कि देखो, मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन तुम उनकी बर्दाश्त नहीं है। मैं जाऊँगा तो वो आएगा और वो तुम्हें वो सारी बातें बताएगा और वो तुमसे सच्ची बातें बताएगा। वो दुनिया को हक से भर देगा। तो और जब अल्लाह ताला रसूलों को भेजते हैं, तो अल्लाह ताला, और देखिए अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि ये कुरान जो है, अगर तुम्हें लगता है कि ये खुद से तराशा हुआ कलाम है, तो तुम इस जैसी कोई किताब ले आओ, इस जैसी एक सूरत ले आओ, इस जैसी 10 सूरतें ले आओ, और तुम नहीं ला सकोगे। कुरान पाक ने पेशन गोइयाँ की, कुरान पाक ने चैलेंजेस दिए, कुरान पाक के बहुत सारे मौज़ूआत हैं। जैसे कि एक इसमें भी सूरह ज़ारियात में पढ़ेंगे, वइन्ना लमूसिऊन, हम इस कायनात को फैला रहे हैं, हम इस कायनात को फैला रहे हैं। तो अक्सर वो जो ईमान लाने वाले हैं, जो अपने इंटरव्यूज़ में लिखते हैं कि कैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त पता चला। इसी तरीके से इम्रोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला कि बच्चा इस तरह पैदा होता है, इंसान की पैदाइश जो है वो माँ के पेट में इस तरीके से होती है। उस वक़्त जब ना टेलीस्कोप थे, ना सैटेलाइट्स थे, ना कुछ था। अक्सर आप जो खंडरात होते हैं, जो खंडरात पे आप जब जो स्टूडेंट्स जाते हैं और जो ज़मीन के नीचे जो चीज़ें दफ़न होती हैं, जब उनको मिलती हैं, तो वो कहते हैं कि ये ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पे सिविलाइज़ेशन थी। वो ट्रेस करके सिविलाइज़ेशन तक पहुँच जाते हैं कि ये यहाँ पे फलानी सिविलाइज़ेशन थी, ये यहाँ पे ये था, इसको फलाने साइंटिस्ट ने बनाया होगा। तो आसमान को, ज़मीन को क्यों अल्लाह ताला जब कहता है सूरह गाशिया में, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, तो आप जब सूरज को देखते हैं, आपको उस वक़्त अल्लाह क्यों नहीं याद आता?
आप खंडरात में देख के पुरानी चीज़ों को आप तहज़ीब तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जब आसमान को देखते हैं, जिस पे कोई शगाफ़ नहीं, ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, सूरज को देखते हैं, चाँद को देखते हैं, तो उसको आप अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट क्यों नहीं करते? उसमें उसमें क्या हर्डल है? कोई चीज़ बनाए बगैर जब नहीं बन सकती, तो क्यों क्यों इस कायनात के बारे में आप जो है वो हिचकिचाते हैं? देखें, हकीकत ये है कि हम सब ने एक दिन मरना है और हम जो है वो मौत की ज़िंदगी के बाद वाली जो ज़िंदगी है उसको दाँव पे नहीं लगा सकते। देखें, अगर आपसे कोई ये कहे कि भई मैंने आपके घर में धुआँ देखा था, तो क्या आग लगी है कि नहीं? तो आप कहें कि नहीं भई, क्या पता लगी होगी, हमें क्या मज़े करो। तो हमारा असल घर जो है वो मौत के बाद है और हम इस दुनिया में मज़े से नहीं रह सकते। इस दुनिया में कोई भी इंसान है वो हर वक़्त एक ही स्टेट में नहीं रह सकता। तो इस कायनात को बनाने वाले ने कानून दिया, इस कायनात में रहने वाले बनाने वालों के लिए कानून दिया और उसने मकसद दिया, उसने रसूलों को भेजा और उसने जब रसूलों को भेजा और जो मुअज़्ज़ात दिए, जैसे कि अल्लाह ताला ने कौम समूद को ऊँटनी का मुअज़्ज़ा दिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आसा दिया, जिसमें ये बताना था कि मेरी प्लांट किंगडम पे भी हुकूमत है, एनिमल किंगडम को भी मैं कंट्रोल करता हूँ। जैसे कि कौम समूद के बारे में अल्लाह ताला ने कहा वआतैना समूद अन्नाक़ता मुबसिरा फ़ज़लमू बिहा। हमने कौम समूद को ऊँटनी का मुअज़्ज़ा दिया उनकी आँखें खोलने के लिए, मगर उन्होंने उसके साथ ज़ुल्म किया। यानी अल्लाह ताला ने ये बात कही कि हम जिस तरीके से नॉन लिविंग थिंग से हम लिविंग थिंग बनाते हैं, तो हमारे लिए तुम्हें ज़िंदा करना कोई कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उस अल्लाह ताला ने, जो कि इस पूरी कायनात का ओनर है, जो कि इस पूरी कायनात को मैनेज करने वाला है, जो कि इस पूरी कायनात को बनाने वाला है, उसके 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 बनाने में हमें नज़्म व ज़ब्त नज़र आता है, हमें संजीदगी नज़र आती है और एक गायत नज़र आती है और इसका इज़हार उसने अपने अपने कानून में किया, उसने अपनी लॉ बुक दी, उसने रसूलों के ज़रिए अपनी किताब दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कुरान पाक पहले ही क्यों नहीं नाज़िल कर दिया? तौरात और इंजील की क्या ज़रूरत थी? देखें, जब बच्चे छोटे होते हैं, उनको खिलौने दिए जाते हैं। जब वो बड़े होते हैं, तो उनको कुछ कलमे सिखाए जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया जाता है, अब्बा सिखाया जाता है, अम्मा सिखाया जाता है, अम्मी-अब्बू के नाम कहना सिखाए जाते हैं। फिर उनको ज़ुबान सिखाई जाती है, फिर उनको बलागत सिखाई जाती है। आप छोटी-सी उम्र में अपने बच्चों को फ़लसफ़ा थोड़ी सिखा देते हैं। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में से रास्ता निकाला, तो ये पैगाम था कि समुद्रों पे भी मेरी हुकूमत है, समुद्रों को भी मैं कंट्रोल करता हूँ। ये वही अल्लाह है जिसने रसूलों को भेजा कानून देके, और ये वही अल्लाह है जो जो कायनात का निज़ाम चला रहा है। अगर कोई और कायनात का निज़ाम चला रहा होता तो वो कहता, वो अपना इज़हार करता, इसका मतलब है कि वो नहीं है। और इस कायनात का निज़ाम बगैर चलाने के चल ही नहीं सकता, घर नहीं चलता बगैर चलाने के। तो इस कायनात का निज़ाम बगैर चलाने के कैसे चल सकता है? वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, तो तुम्हारी ज़ात में भी निशानी है, तो क्या तुम गौर नहीं करते? वफ़िस समाई, और में आसमान में, और आसमान में रिज़्क़ुकुम तुम्हारा रिज़्क़ है। उलमा कराम फरमाते हैं यहाँ आसमान से मुराद बादल है, आसमान से मुराद बादल है, और रिज़्क़ुकुम जो है ये मुसब्बबियत इसको कहते हैं। ये बलागत की टर्मिनोलॉजी है कि मुसब्बब बोल के सबब मुराद लेना, और सबबियत होता है सबब बोल के मुसब्बब मुराद लेना। यानी वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, यानी कि बादलों में तुम्हारा पानी है जो कि तुम्हारे रिज़्क़ का सबब बनता है। तो ये मुसब्बब का नाम कह दिया, लेकिन मुराद सबब था। तो वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम यानी कि तुम्हारे बादलों में तुम्हारा रिज़्क़ है, पानी है, उस पानी से देखो, यानी कि सर्वाइवल है हर एक की। रिज़्क़ का माना हिस्सा, हिस्सा भी आता है, यहाँ पे हिस्सा माना में आया है, हिस्सा यानी कि पानी बरसता है, तो उस पानी से जो है वो बका है, सर्वाइवल है, उसमें लाइफ है हर जानदार की, हर चौपाई की, जानवरों की, इंसानों की। फिर इंसानों का रिज़्क़ है, उसमें सब्जियां हैं, उसमें फल है, फिर उनको खाने वाले आप में से जो फूड चेन जिन्होंने बायो में पढ़ा हुआ है वो इसको बेहतर समझते हैं। तो वह फिर समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और जिसका जो तुमसे वादा किया गया है, किसका? जन्नत और दोज़ख का। ये बहुत अहम आयत है आज के दर्स की। ये जो भी हमने बातें की आज के दर्स कुरान में, उन बातों का ताल्लुक इस आयत से है।
ये फिर कसम एक दफ़ा अल्लाह ताला ने दोबारा खाई। अब देखिए पहला हिस्सा था सूरह ज़ारियात का, पहला रुकू था। शुरू में बात कहाँ से शुरू हुई? कसमों से शुरू हुई और ये पहले हिस्से के आखिरी आयत फ़वरब्बिस समाई, आपके आसमान और ज़मीन के पालने वाला गवाह है, उसकी कसम वो गवाह है, दलील है। ये वही बातें हैं जो कि इस आयत पे, यानी कि हमने जितनी बातें कही हैं उनका असर इस आयत से है। अब ये कसम वाली आयत है, ये जो है ये मुक़सिम बिही है, ये मुक़सिम बिही है जिसकी कसम खाई गई है, और मुक़सिम अलैह है ये जिस बात पर कसम खाई गई है, जिस बात की कसम खाई गई और जिस बात पर कसम खाई गई। अब देखें वाव वाव कसमिया है, रब्बिस समाई वल अर्द, आसमान और ज़मीन के पालने वाले। रब कहते हैं पालने वाले। कसम आपको पता है, कसम का मतलब है दलील, गवाह है, सबूत है, यानी कि आसमान और ज़मीन का पलना इस बात का सबूत है कि इन्नहु लहक्कुन। अच्छा, इंसान में एक और निशानी ये है कि वो रोज़ मरता है, वो रोज़ सोता है, वो रोज़ मरता है और रोज़ जी उठता है। अच्छा, जब वो रोज़ मर रहा है, रोज़ जी उठ रहा है, अगर वो 75 साल का है तो अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा यानी 25 साल उसने सो के गुज़ारा, यानी उसने मर के गुज़ारा। वो कैसे कैसे दोबारा जी उठने का इनकार करता है? यानी कि तुम्हारा जो पलना है, यानी कि तुम्हें इंसान को, यानी कि सूरह वाक़िया में भी अल्लाह ताला ने कहा कि अअंतुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून, क्या तुम पैदा करने वाले हो या हम पैदा करने वाले हैं? अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़ ज़ारिऊन, क्या तुम जो है वो अपनी फसलों को ज़राअत करते हो या हम करते हैं? फिर अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुम पानी नाज़िल करते हो बादलों से या हम नाज़िल करते हैं? अब ये सारा अतफ़ है कि आसमान और ज़मीन का पालना, ये इस बात की, यानी उनके सारे मामलात जो हैं, आसमानों के बारिश बरसना, ज़मीन का तुम दरख्तों को देखते हो, और अपनी ज़ात का यानी समाई वल अर्द, यानी कि उसमें जो रहने वाले हैं, यानी कि आप देखो अपनी ज़ात को देखो, रोज़ जीते हो, रोज़ मरते हो। इन्नहु लहक्कुन, ये गवाही दे रहे हैं आसमान और ज़मीन, गौर व फ़िक्र करो, इनके मामलात गवाही दे रहे हैं, इन्नहु लहक्कुन, ये जो जी उठने का जो वादा है, जो सज़ा और जज़ा है, ये सच्ची है। ये गवाही देते हैं आसमान और ज़मीन। लेकिन ये सारा हम पीछे पड़ चुके हैं, सारा हम पीछे पड़ चुके हैं। सूरह ज़ारियात के लेक्चर शुरू से आप आज का भी लेक्चर सुनेंगे तो ये बात है कि आसमान और ज़मीन का जो पलना है, आसमान और ज़मीन के जो मामलात हैं, वो दलील हैं, वो गवाही हैं। ये किस बात की? इन्नहु लहक्कुन, ये हु किसकी तरफ लौट रहा है? इन्नमा तुअदून लसादिक़, तुमसे जो जी उठने का वादा किया जा रहा है, तुमसे जो सज़ा और जज़ा का वादा किया जा रहा है, वो सच है। अब ये यहाँ पे देखें, मिस्ला मा अन्नकुम तंतिकून, ये उसी तरीके से सच्चा है जिस तरह तुम अन्नकुम तंतिकून, जिस तरह तुम बात करते हो। ये नून, तौ और काफ मादा है, ये बाप दरबा से आता है। नाथा का यंतिकू, नुत्कन इसका मसदर आता है। जिस तरह तुम बात करते हो, जिस तरह तुम्हारे लिए बोलना आसान है, ये उसी तरीके से सच्चा है हमारे लिए, ये उसी तरीके से आसान है। सूरह काफ में अल्लाह ताला ने कहा था ना, ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, ये हमारे लिए जमा करना, ये हमारे लिए आसान है। फिर सूरह ज़ारियात में शुरू में कह दिया फल जारियात युसरा, फिर वो जो है हवाएं जो हैं वो उनको लेके जाती हैं बड़ी आसानी के साथ, यानी कि वो नरमी से लेके जाती हैं आसानी के साथ, यानी हमारे लिए बहुत आसान है ये मामला। फिर आखिर में ये कहा मिस्लामा अन्नकुम तंतिकून, ये उस तरह आसान है इस तरह के तुम बोलते हो। ये बोलने का क्या ताल्लुक है? आमतौर पर हमारे लिए बोलना आसान होता है, कहना आसान होता है। अंग्रेजी में कहावत भी है ना, इट इज ईजियर सेड देन डन। अच्छा, बोलना क्यों कहा? बोलना इसलिए कहा, ये जिस तरह मैं किसी चीज का इरादा करता हूं तो मैं बस उसको कह दूं कि कुन हो जाओ, फयकून, तो वो फौरन हो जाती है। यानी कि ये बात कहने का मकसद है कि देखो आसमान और जमीन के जो मामलात हैं, वो मेरे कुन, वो मैं चला रहा हूं, तुम्हें भी पता है कि तुम नहीं चला रहे। यानी कि ये बताया है कि इनफैक्ट तो तुम्हारे लिए भी बोलना आसान नहीं है, तुम बोलने में भी मेरे मोहताज हो, मेरी मदद ना हो तो तुम बोल भी नहीं सकते। लेकिन मेरा बोलना यह है कि जब मैं कुन कहता हूं तो वो फौरन हो जाती है। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر